Hello, friends. Welcome to day 4 of our web series on Indian polity. Today, we are here to discuss about the fourth day having the topics named Directive Principle of State Policies and Fundamental Duties. Other topics we had discussed earlier in our 3 days of web series. Today is the last day, so we are going to wind up all the topics and we are going to have a rough idea or rough you can say revision about what we had done in last 3 days. But before starting with the presentation or with the topics today, I firstly want to introduce myself to you. And my name is Avinash, and I have a YouTube channel named educator.avinash, where I upload videos related to UPSC or IS examination preparation, which is equally valid for those who are preparing for other government examination. So if you want to take help from these videos, you can do so. My concern is just to upload a quality video so that the user or the aspirant can get maximum benefit with shorter span of time and easily crack the examination without any hurdles. So by this note, I just want to start my presentation of today. But before that, before going with our topics today, that is directive principles of state policy and second one fundamental duties. Firstly, I will introduce a summary to you that what we had done since last couple of days. So just wait a minute. Yes. In this 4 day webinar series, on day one, we had discussed about the thing like necessity of constitution, because on first day we were concentrated toward the thing that is constitution, which is a living document. So we discussed about why we need constitution, what is necessity of constitution, how constitution as a concept evolved. That means we discussed about Magna Carta and all. Then we discussed some small concepts like law of land. We also discussed about constitutionalism, that what is constitutionalism, and then we define constitution. Finally, when we understood all these things, then we started with definition of constitution. Then we discussed features of Indian constitution, because at the end we are going to discuss about Indian constitution first. When you are good enough and when you have a good command over Indian constitution, then we will switch to other constitutions, because they are equally important for our preparation. And then we started with parts of Indian constitution, how to remember parts of Indian constitution, because as we know there are 22 parts, and which are these parts, how to remember, all these tricks we had discussed on day 1. And on day 2 we discussed about fundamental rights. Primarily on day 2 we discussed about fundamental rights and preambles. Fundamental rights were only two that we included on that day, that were right to equality and right to freedom. These two fundamental rights we discussed on day 2. And on day 3 we discussed about the other fundamental rights that we had not included in our day 2 discussion. So these all were the topic of discussion on day 3, and today is day 4, where we are going to discuss about directive principles of state policy and fundamental duties. So these are the, you can say, summary of the topics that we had already discussed and we are going to discuss. If you had missed any of them, I mean, if you were missing on day 1, day 2, day 3, or even if today you are not able to be on the day 4 webinar, live webinar, then you can follow the same from the videos that we upload daily. I mean, we had already uploaded day 2 and day 3 video, and on day 1 we had some technical issues due to which the video was not that much of quality that we were able to upload that. But we had planned that we will upload the day 1 video also, but it will take time. I can't commit to yes I mean tomorrow or day after tomorrow, but I will upload day 1 video also. So by this note, I think it's good enough time to start with our presentation on day 4. That means the topics that we are going to discuss today. So let's get started with these topics. So here it comes.
topics which we had already discussed, but we had discussed in day 1, day 2, day 3, and today's day 4. And our discussion will be on fundamental duties and directive principles of state policies. Firstly, we start with directive principles of state policies, because as you must be knowing by now that on this first we had discussed about parts of Indian constitution, and in that video we discussed that directive principle of state policies come in which part. Can you answer me in the chat box? Will you repeat? uh, what are the concepts that you want me to repeat, Navneet? Because I had just given the introduction about what we had already done. So I'm not getting what you want me to repeat. Hmm. After introduction, you asked a question. Yes, I asked the question that directive principle of state policies comes under which part? I mean, fundamental rights come under part 3. Then can you answer me the question that directive principles of state policies comes under which part? Mm, fine. I think that you should work on, because I had already discussed about it. But I continue my discussion. That is directive principle of state policy. So, directive principle of state policy, as by name, it suggests that they are just directions. I mean, for example, if you are going to some place, someone gives you directions that you have to go through this path. So you have to at last follow that path, uh, just because that you will achieve what you want to achieve. For example, अगर मैं बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है एंड दिल्ली जाने का रास्ता ये है, अगर आप वो रास्ता फॉलो करेंगे तभी आप दिल्ली पहुंचेंगे. तो वही चीजें आप बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. इसमें स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप अपनी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह से फ्रेम करें. और डायरेक्शंस जो होती हैं वो कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकती. वही यहाँ पे है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो बाइंडिंग नहीं रहेंगे. वो क्या है, एक तरह से डायरेक्शंस है. एक बहुत जैसे आप बोल लीजिए, देखिए जब हम आज़ाद हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे. तो उस समय जब हमारे पास रिसोर्सेज की ऑल दो कमी थी, तो हम ऐसा नहीं था, हमारे फाउंडिंग फादर्स को पता था कि कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी है. क्योंकि आपको पता होगा जो मेन ईथोस हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर चाहते थे, उसमें सोशलिज्म भी एक ईथो था. अब वो सोशलिज्म में हर चीज हर किसी को प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं रहता. अब वो चीज कैसे हो, उन्हें भी पता रिसोर्सेज नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो. तो उन्होंने क्या करा, वैसी पर्टिकुलर चीजें उठा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर रख दी. उसमें क्या हो गया कि उन्होंने डायरेक्शंस दे दी कि आपको भाई ये काम करना है, और बाय द टाइम जब आपको लगे कि इन्वायरमेंट इज गुड इनफ कि आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हो जाएं कि आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सके, तो उस समय आप क्या करें, आप ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो जो आर्टिकल्स हैं, जिनके अंदर जो जो क्लॉजेज हैं, आपको लगता है कि हाँ आप इस समय ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां से वो आर्टिकल उठा दें. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से वो आर्टिकल रिमूव करके आप उसको चाहे फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दें, चाहे आप किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर डाल दें. इससे क्या है कि आप बोल सकते हैं कि एक बफर की तरह से रखा कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो, तो वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया. और फिर क्या करेंगे, वो बाद में जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उन्हें यूज किया, वो बफर से वो चीजें निकाली, यूज किया, और उसको एक स्पेसिफाइड एरिया दे दिया, एक स्पेसिफाइड राइट या लीगल सेंटिटी के साथ एक प्रोवाइड कर दिया. कि क्योंकि मैंने पहले बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिफाइबल नहीं है, तो अगर वो कोई राइट बन जाएगा तो नेचुरल वो जस्टिफाइबल हो जाएगा. तो वही चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की है. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए. फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें स्टेट वर्ड आ रहा है. हमने जब फंडामेंटल राइट्स किए थे उसमें भी देखा था कि जो भी ये गवर्नमेंट जो भी ये जजमेंट्स होती हैं, या जो भी ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें स्टेट को डिफाइन करना जरूरी है सबसे पहले. तो सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है. स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन सेम है जो फंडामेंटल राइट्स के केस में थी. अब फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या थी, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा.
तो इसके लिए अगर आपको याद है गुड इनफ, अगर नहीं है तो आर्टिकल 12 देखिए। और इसके बाद आता है आर्टिकल 37। सबसे पहले स्टेट डिफाइन किया कि किसके लिए डायरेक्शंस हैं, देन कम्स आर्टिकल 37। एक ही पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि ऑल्दो हमने बता दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, एक कि उसमें स्टेट क्या है जिसके लिए डायरेक्शंस है, बट ये चीज पहले मेंशन कर दी जाती है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। मैंने पहले बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से डायरेक्शंस की फॉर्म में है, सो इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं रहते हैं। वो ऐसा माना जाता है कि फंडामेंटल है, कि फॉर एग्जांपल एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो वेलफेयर स्टेट होना एक तरह से फंडामेंटल है, कि वो होना ही चाहिए। अगर आप वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है, अगर आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक जैसे बोले इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आप डेमोक्रेसी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट क्यों देंगे, अगर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो फंडामेंटल है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत मुश्किल रहेगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटल है, वो करनी है। फिर आर्टिकल 38 आता है। अब देखिए 36 और 37 जो है वो तो एक नॉर्मल वो हो गए आर्टिकल्स। पहले स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर एनफोर्सिबिलिटी की बात कर दी। उसके बाद जो आर्टिकल 38 से स्टार्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। तो जो 36 से 51 के 38 से 51 के बीच में जो आता है वो एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्हें आप बोल सकते हैं। और वो जो है उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो जो उसको लिखने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पर्सन्स थे उनका क्या रहता था कि उनकी हर किसी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो उनकी भी कुछ आइडियोलॉजी थी, वो भी कुछ पर्टिकुलर चीजें थी जो इंडिया के केस में चाहते थे। अब वो चीजें क्या थी, वो चीजें थी जैसे सोशलिज्म की बात हो गई। और आपको पता है कि आज भी मतलब हम सबको पता है कि जो गांधी जी की बात होती है तो उस केस में नेशनल फादर है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते हैं कि उन बेसिस पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं, पर फॉर टाइम बिंग यहाँ पे आर्टिकल 38 लिखा है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। सबसे पहले और सबसे क्लियर बात यह है कि वेलफेयर स्टेट होना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला जब तक वेलफेयर स्टेट नहीं होगी तब तक लोगों में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, लोग ऐसे आगे इवॉल्व कैसे होंगे। तो इसके लिए वेलफेयर स्टेट होना जरूरी है। और इस यही आर्टिकल 38 में लिखा जाता है। क्लॉज 1 क्या बोलता है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रमोटिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। हर किसी के लिए वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि वो हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। वेलफेयर के लिए काम करेगी तो हर किसी के जस्टिस की उसको ध्यान रहेगा, वो इक्वालिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी। और ये सारी चीजें जो हैं जैसे वेलफेयर वगैरह की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी तो उनकी जो भी पॉलिसीज है उन्हें गाइड करेगी, इसीलिए इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोला जा रहा है। फिर क्लॉज 2 में क्या बोला जाता है, स्टेट स्ट्राइव टू minimize inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities। वही बात आ गई inequalities, क्योंकि देखिए वेलफेयर स्टेट का ही कंसेप्ट क्या है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही ये है कि जितनी इनइक्वालिटीज हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे हमने एक रफ आइडिया ले लिया, देखिए 36 37 आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। अब उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ नॉर्मल चीजें, मतलब जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए वो देखते हैं। दे रिफ्लेक्ट माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू ब्रिंग रिफॉर्म इन मैनी एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जैसे मैंने पहले बोला कि वो लोग चाहते थे कि कुछ ये पर्टिकुलर चीजें हों बट इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया। और ये जो कंसेप्ट है ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है।
और वही बात आ गया कि ये जस्टिफाइबल नहीं है, बट हाँ ये मॉरली बाइंडिंग है। कि फॉर एग्जांपल कुछ चीजें होती हैं कि उनके लिए मतलब लॉज नहीं होते हैं, बट मॉरली आपकी ड्यूटी है कि आप वो करें। तो वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपकी मॉरली। अगर आप ओथ लेके आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को ले रहे हैं, अगर आपने ओथ ली है कि हाँ मैं ये ऐसा ऐसा करूंगा, मैं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करूंगा, और उसके बाद भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो लोगों की वेलफेयर के लिए चीजें लिखी गई हैं उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो ये तो आप अपने साथ ही पार्शियलिटी कर रहे हैं, अपने साथ ही एक तरह से आप चीटिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है ये मॉरली बाइंडिंग है। फिर क्या आता है, रीजन फॉर नॉन जस्टिफेबल इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो हमने पहले देख लिया। एग्जाम्पल, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन वॉज अर्लियर डीपीएसपी, मैंने पहले बोला कि पहले डीपीएसपी में रख दिया, और अगर उन्हें लगा जब उनके पास रिसोर्सेज है तो उन्होंने उसे उठा के फंडामेंटल राइट बना दिया था प्राइमरी एजुकेशन के केस में। अब मैंने पहले बोला कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। आपको पता है कि नेहरू नेहरू जी जो थे वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो इस वजह से वो लोग वो क्या चाहते थे कि सोशलिज्म इंडिया में भी प्रमोट किया जाए। तो कुछ ऐसी चीजें जो सोशलिज्म को प्रमोट करती हैं वो डीपीएसपी में रखी गई हैं, और उसमें आर्टिकल 38 आता है। पहली बात हो गई वेलफेयर स्टेट की, तो नेचुरली वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो वेलफेयर स्टेट जिसमें कि मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज। फिर 39 आर्टिकल क्या बोलता है, स्टेट एंडीवर टू इंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। अगर आपको पता है सोशलिज्म क्या होता है, देखिए एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल आ जाएगा या कुछ पर्टिकुलर चीजें आ जाएंगी कि हाँ ये बताइए ये डीपीएसपी में है और ये किस आइडियोलॉजी से प्रभावित है ना, मतलब किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो वो सारी चीजें कहाँ, वो चीजें आप कैसे रिलेट करेंगे, एक तो आपको आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए कि उस आइडियोलॉजी का क्या मतलब था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि ये गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है, मतलब उस पर बेस्ड है, तो उसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था, मतलब वो कोटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात है, अगर आपको पता है सोशलिज्म क्या है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर लिखा है वो सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है या किसी और आइडियोलॉजी से है। तो आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट की बात है तो सोशलिज्म से जरूर इंस्पायर्ड होगा। आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड दो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हो। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, एंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक ही हर किसी को राइट टू वर्क मिले। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा है, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं एक ना एक तरह से वो राइट टू वर्क जो है उसको इंस्पायर करे, क्योंकि हर किसी के पास राइट है, राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, आर्टिकल 21 के हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आप हर जगह रिलेट कीजिए। कोई भी आपके सामने लॉ आता है, कोई भी चीज आती है, तो मेरा मेरा ये पर्सनल आपको एडवाइस होगा कि आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में आर्टिकल, तो आप ये जरूर देखिए कि क्या वो, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ी रहती है। तो आप ये जरूर देखिए कि क्या वो आपके फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, क्या वो डीपीएसपी में किसी ना किसी, सपोज गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी एक्ट पास हुआ है, तो देखिए कि क्या वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी की जो आइडियोलॉजी है किसी भी फॉर्म में, मतलब सोशलिज्म या गांधीयन जो प्रिंसिपल है उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि आप इस प्रिपरेशन को एंजॉय करते कीजिए। बर्डन लेके करेंगे तो ना एग्जाम क्लियर होगा और आप फ्रस्ट्रेट अलग हो जाओगे। तो इसलिए एंजॉय कीजिए। एंजॉय कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रेशर बहुत रहेगा तो आपको क्या करना है, हर चीज को रिलेट करना है, रिलेट करना है अपनी स्टडी के साथ। मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ भी हो रहा है उसे फंडामेंटल राइट से रिलेट कीजिए, डीपीएसपी से रिलेट कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इससे क्या होगा, आपको वो चीजें याद होती भी जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब बोलते हैं ना, लर्निंग को फन के वे में लीजिए, तो वो चीज कीजिए। फिर आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, जो हमने देख लिया। 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर वर्कर्स एंड मैटरनिटी लीव रिलीफ फॉर वुमेन।
ये भी देखिए हर किसी इंसान के पास हक है कि ठीक है, अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इनह्यूमन जो कंडीशंस है उसमें रखें, मतलब बहुत हाइजीन अनहाइजीनिक जो एरिया है उसमें हो, उसको सपोज कीजिए जैसे 9 आवर की जगह आप 12 या 22 आवर उसको ड्यूटी पे रखें, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये अच्छी चीजें नहीं मानी जा सकती। तो ये इस वजह से सोशलिज्म के अंदर है। फिर क्या है 43, वो क्या बोलता है, स्टेट्स शैल ट्राई टू सिक्योर फॉर ऑल द वर्कर्स अ वर्क, लिविंग वेजेस, रीजनेबल लेयर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए ये सारी चीजें अगर आप रिलेट करेंगे तो बहुत जर्नलिस्टिक चीजें लगेंगी आपको। अब 43 ये भी क्या बोल रहा है, सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। आपको पता होगा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी हो गई, ठीक है, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी हो गई, उसमें बहुत थोड़ा बहुत फर्क रहता है। तो अगर आप बात करें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि कम्युनलिज्म में होता है, उसमें क्या रहेगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनका कहना ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के पास ना हो, वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वही 43 ये बोल रहा है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत अधिकार होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट जो है फैक्ट्री का उसको देख सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी, क्योंकि देखिए हर किसी का एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी हायर मैनेजमेंट की जो पोस्ट है उससे, तो आप उस हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। वही चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स हैं वही मैनेजमेंट करें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग। बट इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट उनसे पूछा जाए, उनकी राय, उनसे रिलेटेड कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी चीज हो रही है तो उसमें उनकी जो राय है वो भी इंपॉर्टेंस रखे, ये चीज होती है। उसके बाद 43 बी क्या बोलता है, प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो कंसेप्ट है वो बाय कंसेप्ट ही आपको यही लगेगा कि वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है। तो वही चीज यहाँ पे आप ऐसे चीजें करके रिलेट करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो वर्डिंग्स लिखी हुई है आर्टिकल्स की, ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स बिल्कुल नहीं है। तो आपको वर्डिंग्स देखने के लिए बेयर एक्ट जरूर देखना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अगर पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ रखना है। उसके बाद आता है आर्टिकल 45, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अब देखिए अगर आप ये चीजें देखेंगे, ऑल्दो ये सारी चीजें आपको बेसिक लगेंगी कि होनी चाहिए, मगर आप ये भी समझिए कि ये सारी चीजें करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज की कंट्री को हमेशा कमी रहती है। दैट्स व्हाई वी हैव अ प्लान, तभी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है तो आपको प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मगर अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आपको हर चीज को प्लान करके चलना पड़ता है, ताकि आप बहुत इजीली चीजें मैनेज कर सके, हर चीज को आप परचेज कर सके, हर चीज को ऐसा ना हो। देखिए आपको अगर आप घर का भी बजट करेंगे तो आप उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कहीं ना कहीं आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी रहती है। अगर आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारा बजट चाहिए, और इसके लिए अभी टाइम लगेगा। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, अगर वो पॉलिसीज बनाती है तो वो नेचुरली इन सब चीजों का ध्यान रखती है। बट इस सिचुएशन में नहीं आई है कि इन्हें सीधा ही वो मतलब आपको फंडामेंटल राइट की फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की फॉर्म में दे दे और यहाँ से उस आर्टिकल को रिमूव कर दे या रिपील कर ले। फिर आता है आर्टिकल 46, वो क्या बोलता है, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का ध्यान रखना सोशलिज्म में जरूर आता है। तो वही चीज है 47, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। अब अगर आप चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना उनसे भी रिलेट करेंगी। अब जैसे प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, अगर आपको याद हो तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन की बात होती है, ये सारी चीजें होती हैं। वो भी कहीं ना कहीं आप क्या समझ रहे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उससे इंस्पायर्ड ही है। तो यही चीजें हैं कि आपको दिखाती हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ये आप पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जस्टिफाइबल नहीं है, इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रेजेंट है इस वजह से गवर्नमेंट जो बाउंड है, मतलब मॉरली बाउंड है कि उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना है वाइल मेकिंग लॉस। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो इन सब चीजों से आप इजीली समझ गए होंगे कि ये सारी चीजें सोशलिज्म से रिलेटेड है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन थॉट्स।
अब गांधी जी की अगर आइडियोलॉजी आपको पता है, तो आप जितने भी आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे ना, आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सी किसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, गिव देम पावर सो दैट दे फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब आप बोलेंगे पंचायत तो ऑर्गेनाइज होती ही है, पंचायत तो हर जगह है, मतलब मैंने आपको जो पार्ट्स बताए थे तो उसमें भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, तो फिर भी ये डीपीएसपी में ही एज सच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, गिव देम पावर सो दैट दे फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मगर जो हमारे यहाँ पंचायत है उसके पास इतनी पावर्स नहीं है, उनकी पावर्स जो है वो स्टेट पे डिपेंडेंट है। इस वजह से ये डीपीएसपी में है, ऑल दो पंचायत के होने के बावजूद, ना कि ये कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना है, बल्कि ये डीपीएसपी में रहा है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। आपको पता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के वो फेवर में थे, तो इसलिए वो गांधीयन थॉट्स में आ गया। 47 क्या बोलता है? प्रिवेंट कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड अदर हार्मफुल ड्रग्स। ये भी नॉर्मल चीज है, ये आप बहुत इजीली रिलेट। देखिए मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर आपको उस पर्सन की या उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप आसानी से चीजें देख सकते हैं। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ban slaughter of cows, calves and other mulch and draught cattle। ये सब चीजें हैं गांधीयन थॉट्स में। फिर आते हैं आर्टिकल 51, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में भी है, आपको पता होगा, तो कुछ वैलिड ग्राउंड्स है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी भी होता है। तो फिर भी ये डीपीएसपी के अंदर है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जैसे स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हम ऑल्दो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट हमारे पास अपने लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं? इन्वॉल्व होंगे, पर ये नहीं होगा कि कहीं भी हम अपनी फोर्सेस जो है ऐसे ही भेज दें। तो इस वजह से ये डीपीएसपी में ही रखा गया है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद अदर नेशन। हम हमेशा कोशिश करते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वी ऑल नो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। फिर क्या है? फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। ये चीज तो बिल्कुल, मतलब आप बोल देंगे तो है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन से आप इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स सेटल करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो आर्बिट्रेशन कहाँ होगी? हमारी कंट्री में होगी या फॉरेन कंट्री में होगी? फिर उसको वहां वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? उस प्रोसीडिंग को जो फॉरेन कंट्री है वो उसे बैक करेगी, नहीं करेगी? तो ये सारे इश्यूज रहते हैं। इस वजह से ही ये आर्टिकल 51, जो कि इतना बेसिक लग रहा है आपको, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो इतना बेसिक होने के बावजूद भी डीपीएसपी में है, ना कि कोई और लॉ बना है, मतलब ना कि कोई और राइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी इनमें, ये कैटेगरीज है उनमें नहीं आते। उनमें से सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, जो कि बाद में ऐड हुआ था। मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये काफी बेसिक चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। आर्टिकल 44, एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि पहले बहुत चर्चा में रहा था, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल जरूर कीजिएगा। आर्टिकल 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी चीजें क्या है? डीपीएसपी के अंदर आती हैं। अब इससे आपका डीपीएसपी खत्म होता है। तो डीपीएसपी में हमने देख लिया सबसे पहले कि डीपीएसपी क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर देखा आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है, उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन इस तरह से की है ताकि वो याद रखने में आसानी हो, रिलेट करना आसान हो, क्योंकि चीजें रिलेट करके याद करेंगे तभी वो अच्छे से याद रहेंगी। फिर अब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A के अंदर है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। मगर जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी तब ये 10 थी, बाद में एक और ऐड हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूटीज। देखिए मैंने जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे, मैंने तब भी कहा था कि राइट्स के साथ हमेशा ड्यूटीज आती है, पर ड्यूटीज के साथ राइट आए ये जरूरी नहीं होता है। तो राइट्स और ड्यूटीज जो है वो टू साइड्स है ऑफ सेम कॉइन।
कमिटी अंडर स्वरण सिंह रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता है इमरजेंसी के दौरान ये सब चीज हुई थी, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो फॉर श्योर आपको ये सब चीजें पता होंगी। अगर नहीं पढ़ी है देन आई विल रेकमेंड कि आप जरूर एनसीईआरटीज पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर होता है, और अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फायदा नहीं रहेगा। और इसमें अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हेल्प ले सकते हैं, उसमें हम रेगुलर वीडियोस अपलोड की है और अब आगे भी करेंगे। इकोनॉमिक्स की करनी स्टार्ट कर रहे हैं अब हम आगे से। बट आइडिया ऑफ पेनल्टी वॉज नॉट incorporated, and by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 fundamental duties were added। जो कमेटी थी उसने रेकमेंड किया था कि पेनल्टी भी होनी चाहिए, कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी ओबे नहीं कर रहा है तो उस केस में उसको पेनल्टी लगनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि पेनल्टी की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो उस समय 10 थी वो ऐड की थी। मगर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की गई थी। वो क्या थी? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब देखिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि वो आपको राइट में भी मिल जाएगा, डीपीएसपी में भी मिल जाएगा, ड्यूटीज में भी मिल जाएगा। तो इस वजह से एजुकेशन, मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर आपके पास पावर आती है तो एजुकेशन की फील्ड पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को एजुकेट कर पाएंगे तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो एजुकेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास इनकेस कभी पावर आता है। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। देखिए अगर आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो नॉर्मल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जेन्युइनली बहुत बड़ा थ्रेट है एक कंट्री के लिए, कि उसके अपने ही सिटीजन जब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो बाहर के जो एलियंस हैं वो कैसे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये जो नेशनल फ्लैग है, एंथम है, या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। फिर क्या है? चेरिश एंड फॉलो आइडल्स इंस्पिरेशनल फॉर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी उसमें जो भी आइडल्स थे उन्हें हमें ऐसा नहीं है कि उसकी हम उसको क्रिटिसाइज, जेन्युइन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एडवाइजेबल, कि आप हमेशा जेन्युइन क्रिटिसिज्म कीजिए, क्योंकि जब तक क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी चीजों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर एक काम एक बंदा कर रहा है और हर कोई बोल रहा है कि वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हर चीज कभी सही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो वो प्रॉब्लम ना रहे, या हम बोल सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल किया जा सके, इसलिए क्या है कि उसको क्रिटिसिज्म उसका होना बहुत जरूरी है। तो क्रिटिसिज्म कीजिए, जेन्युइन क्रिटिसिज्म कीजिए, मगर ऐसा नहीं है कि आप जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल के जो इंस्पिरेशनल आइडल्स थे उन्हें आप बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दें। तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि उसे आप चेरिश कीजिए, कि आपको अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप ही अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई क्या करेगा। फिर सी क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी नॉर्मल है, ये भी ड्यूटी होना लाजमी था, मतलब फॉर श्योर ये ड्यूटी हर किसी की है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। हमने राइट में भी देखा था, फंडामेंटल राइट में, कि ऑल्दो किसी को फोर्स लेबर के लिए नहीं आप कर सकते, मगर अगर स्टेट को लगता है कि हाँ कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि जिसमें कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आपको वो कंपेल कर सकती है कि आपको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वही चीज यहाँ पे ड्यूटी में आती है कि आपको खुद ब खुद ही अपनी सर्विस नेशनल सर्विस के लिए देनी चाहिए। मतलब अगर सपोज आपको लगता है कि कंट्री को पूरा थ्रेट हो रहा है तो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर क्या है? प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अगर हमें स्पिरिट ही नहीं होगी ब्रदरहुड की तो आप इकट्ठे कैसे रहेंगे? वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। देखिए कई लोग होते हैं उन्हें कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कल्चर के बारे में अच्छी नहीं लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंडियन कल्चर है उसमें ये प्रॉब्लम्स है। ऑल्दो आपको समझने की जरूरत है कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत कलरफुल है। अगर आप उस कलरफुल कल्चर को आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फॉर श्योर
आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहते हैं ना कि नॉर्मल जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है उसमें वो मजा नहीं होता जो कलरफुल इमेज पे होता है। तो वो चीज़ों आपको समझनी चाहिए, और इसलिए आपको जो हमारा हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है जिसमें इतनी सारी कलर्स हैं, उसे आपको हमेशा मतलब चेरिश करना चाहिए, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब होता क्या है, हम लोग हर कोई मॉडर्निटी के चक्कर में जो हमारा कल्चर है उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं, और फिर जब हमारे साथ खुद वो चीज़ होती है कि हमारी मतलब हम अपने पेरेंट्स के साथ वो कल्चरल जो भी इश्यूज हैं वो रखते हैं, हम इंडिविजुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। पर जब इन फ्यूचर हमारे से आगे वाली जनरेशन हमारे साथ ऐसा करती है, तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो वो यहाँ पे है कि आपको जो भी अपनी रिच हेरिटेज है, हेरिटेज नहीं, या रिच हेरिटेज बोला जा रहा है, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर क्या आता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। वो हम सबकी ड्यूटी है, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो इस ड्यूटी को ओबे करते हैं। फिर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यहाँ पे भी वही चीज आती है कि आपको साइंटिफिक इंक्वायरी जरूर रखनी चाहिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, यू शुड क्वेश्चन इट, बट रैशनली। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरली कुछ भी चीज करें, यू शुड थिंक रैशनली एंड साइंटिफिकली। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए। बट इंडिया के केस में सबसे ज्यादा होता ही ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी सबसे पहले हार्म हो जाती है। टू सर्व टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइसेस। हम सबको हमेशा, देखिए इसमें हमारा फायदा है, देखा जाए तो हमारा भी तो फायदा है कि अगर हम अ, अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर उसमें कंट्री को भी फायदा होता है, क्योंकि कंट्री की भी इकोनॉमी ग्रो करती है। और उस एज अ, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप बहुत अच्छे से राइज अप करके आते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी में। और वर्ल्ड कम्युनिटी में आप जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी आप इन फ्यूचर, जैसे बोलते हैं ना, वो एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ करते जाएंगे, वैसे एक्सपोनेंशियली आपकी पावर, आपकी नेगोशिएशन पावर जो है वो इंक्रीज करती जाती है। फिर लास्ट क्या है, पेरेंट और गार्डन सॉरी parent or guardian has to provide opportunities for the education of his child what between age of 6 to 14। ये भी चीज बिल्कुल नॉर्मल है कि जो पेरेंट्स है उन्हें अपने जो भी चाइल्ड है या जो चिल्ड्रन है, उन्हें इस तरह से रखना चाहिए कि उन्हें 6 से 14 ईयर्स के बीच में, इवन 6 से 14 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस एज में आपका माइंड डिवेल्प हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर गुड इन एजुकेशन और नॉट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही चीज में फील्ड में जाना जरूरी है, हर किसी को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज कई लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कई किसी और चीज में अच्छे होंगे, तो हर किसी को पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, एक बेसिक एजुकेशन मिल जाए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से नरिश कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो होता है कि 6 से 14 ईयर्स के बीच में आपको एजुकेशन मिले। आपको लगता है आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें। आपको नहीं लगता तो एटलीस्ट आपके पास इतनी एजुकेशन होगी कि आपको इन फ्यूचर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। तो इससे ये जो हमारा डिस्कशन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये भी खत्म हो जाता है। हमने आज की जो डिस्कशन थी उसमें हमने क्या क्या देखा है, एक तो हमने डीपीएसपीज देखे, उसमें हमने देखा कि हमने कैसे क्लासिफाई किया गांधीयन सोशलिज्म, और जो हमारी पीस एंड सिक्योरिटी के लिए था जो मिसलेनियस है प्रिंसिपल्स, उनके बारे में। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी। तो इसके साथ हमारा जो ये वेबिनार सीरीज है वो खत्म हो जाती है। मैं आपको ये एंड में ये जरूर कहूंगी कि अब हमने ऐसा किया है कि हम हर वीक एक वेबिनार किया करेंगे, और उस वेबिनार में हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में और वो पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी। तो आप उस लिंक में जाके रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कि जब भी, मतलब ये तो हम वन वीकली वेबिनार की बात कर रहे हैं, अगर कोई और भी वेबिनार हम अरेंज कर रहे हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो उससे क्या होगा कि आप वो मिस नहीं कर पाएंगे और आपके लिए जो स्टडी है उसमें फायदा रहेगा।
तो इसके साथ ये जो आज का हमारा डिस्कशन है ये खत्म होता है और हमारी 4 डे की वेबिनार सीरीज भी खत्म होती है। पर ये सीरीज खत्म करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक बार आपको अपना यूट्यूब चैनल जरूर दिखा दूँ, जिससे कि अगर आपको लगे तो आप उस पे जाके अपने जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इस पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं। इसमें अभी तक हमने जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो एनसीईआरटीज है उसकी वीडियोस अपलोड की हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो जो भी एनसीईआरटीज हैं उसकी जो भी रेफरेंसेस हैं आप देख सकते हैं। और अब हमारा प्लान है कि अब बहुत जल्दी, मतलब इस मंथ में ही हम इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। तो आप इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस है वो भी इसमें देख लेंगे और फिर हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको पता चल जाए और आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। तो इसके साथ हम अपना सेशन ऐड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी चैट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट कि आई कैन आंसर इट। ओके फाइन, देन वी एंड रैप अवर डिस्कशन एंड इसके साथ हमारा जो ये सीरीज है, वेब सीरीज थी, वो भी खत्म होती है। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो या आपको लगता है इन फ्यूचर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है educatoravinash58@gmail.com, उस पर हमें मेल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम उन्हें जरूर आंसर करेंगे। सो बाय दिस नोट, थैंक यू सो मच for your time and okay then, goodbye.